Hello, everyone. I'm sure most of you have received the Narsi Munji call, and in Narsi Munji call letter, this Watson Glacier test is given that you have to attempt this Watson Glacier test, and most of you are wondering what is that Watson Glacier test. So I've prepared a video so that all your doubts will be clear about this particular aspect. What is that? So we are going to cover everything in this videos. What is Watson Glacier test? What are the sections, what are the sample questions. So all your doubts regarding this particular test will be over. So let's start. My name is Lokesh Agrawal. If you have not subscribed the channel yet, you can do that, and you can find other videos as well. So let's start it. The first thing is, what is Watson Glacier test? The test is originally created by Goodwin Watson and Edward Glacier. The Watson Glacier test measures the skill required to present a certain point of view in a clear, well structured, well reasoned, and persuasive way to convince others of your argument. So basically, it is nothing, it is more or less, it's a critical thinking test where you have to answer certain questions based on your critical thinking ability and how clear in your thoughts. So the Watson Glacier test assess your ability to think critically, come to the conclusion, analyze strong and weak arguments, recognize assumptions, and evaluate arguments. So as you can see, all the aspects are related to CR, critical reasoning, basically. So they want to check whether you can think critically and you can take certain decisions based on your strong argument and weak argument, and are you able to recognize the assumptions or not. So this test is going to be a very important aspect beside VET and PI. This test is going to be very important. So let's discuss. They have given the name as Watson Glacier test, not Watson Glacier test. They have given it Watson Glacier test. This is from the NMMS website itself. The Watson Glacier test is a self-time test. Read the instruction slides carefully to understand the Watson Glacier test. The test has 5 types and each section has its direction. Total time allotted is 30 minutes and it will be automatically submitted by machine clock. And the submit, if the test is incomplete, then it will be automatically recorded. So try to fill this test in 30 minutes. So there will be 5 types of test designed to find out how well you are able to reason analytically and logically. Each test has separate directions. Please read them carefully. For each section, for each question, decide what you think is the best answer, as your score will depend on the number of items you answered correctly. Only. There is no negative marking, guys. Try to answer each question even if you're not sure that your answer is correct. So you have to answer all the question. You should try to answer all the question, as there is no negative marking. The marks will be given only for the answer which you marked correctly. The test contains 40 scored questions and there is a time limit of 30 minutes. So you have to complete 40 questions in 30 minutes. Once the time is started, it cannot be stopped manually. The test will pause automatically during the instruction screen and example question for each subject. So example will be given, and that's why I have decided to create this video, because not much information is available about this test. And if you go prepared, then definitely it will be easier for you to tackle this test better. So I'm going to discuss all the 5 tests which they are going to conduct, and the sample question I have already taken for each test. So let's check one by one. The first test will be inference based, and I have taken the test in the same order as it is going to appear in the actual test. So first test will be based on inference. Now this is interesting. Here you have to understand the answer options perfectly. Here the difference between probably true and probably false, and what is true, what is insufficient data, that you need to understand it properly. What is that? I tell you. If the conclusion is explicitly stated in the text, if you're 100% sure the data given is exactly concluded, then you are going to mark this answer perfectly true. What is it? Probable true. Now, probable true is based on the text and common knowledge. It is more probable that the conclusion is true than it is false. Means the chances of being true if it is more than 50%.
chances of being true is more than 50%, or you can say it is between 50% to 100%, then you are going to mark this answer. तो सही होने के चांस ज्यादा है. Though we are not able to get the exact answer, we are not sure, but still कॉमन नॉलेज भी यूज करनी है इस तरह के क्वेश्चन में. ठीक है, अजम्पशन भी लेना है आपको. Insufficient data you will mark. The text does not contain enough information to decide truthfulness of the conclusion. If text does not contain enough information to decide, then you are going to mark insufficient data. अगर हमारे पास डेटा sufficient नहीं है, data is not given. So most of the time in critical reasoning question till now, what we have done it, if we are not 100% sure, then we mark this answer. But here, because this choice is also given, so even if you're not 100% sure, and even if you think the data is not given, then you have to take a case between probable true and probable false also, because there is a probability, possibility. तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डेटा गिवन नहीं है. जितना नॉलेज है, जितना अजम्पशन ले सकते हो, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. अगर बिल्कुल डेटा मैच नहीं कर रहा, तब तो डेटा इज नॉट गिवन आंसर होगा. लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्लू मिल रहा है, देन यहां पे जो पॉसिबिलिटी वाले हम आंसर मार्क करते थे, वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे इस केस में, है ना. Probable false. Based on the text and common knowledge, it is more probable that the conclusion is false than it is true. मतलब chances of getting it true is less than 50%. यानी कि अगर it is 0 to 50 के बीच में है, तो आप ये वाला आंसर मार्क करोगे, probable false. And if the conclusion is explicitly negated in the text, मतलब कोई चांस नहीं है, 0% चांस है सच होने का, then you are going to mark false. तो अगर completely wrong, completely negate कर सकते हैं 0%, अदरवाइज चांसेस 50% से कम है तो प्रोबेबल फॉल्स. चांसेस ज्यादा हैं सही होने के तो 50 से ज्यादा हैं, बट 100% श्योर नहीं है तो प्रोबेबल ट्रू. ये दो क्लोज चॉइसेस हैं, इसमें आप फंसोगे, पता है आपको, इन तीनों में. तो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कब प्रोबेबल ट्रू मार्क करना है, कब इनसफिशिएंट डेटा, कब प्रोबेबल फॉल्स. एग्जांपल लेते हैं, देन आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर टू यू. लेट्स से एक क्वेश्चन देखते हैं. जेम्स इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट who was fined 60 pound on 3 different days during the past month for smoking in public at his workplace. On each of the occasions, he admitted to the act peacefully, telling policemen that he is unwilling to conform to such a breach of people's right to privacy. Right? So, James paid the 3 fines shortly after receiving them. So, he has paid till now how much amount? He has already paid 180 pounds in the past month. But the question is, James has spent at least a couple of hundred. He's asking, James has spent at least 200 pounds, couple of 100 pounds, more than or equal to 200 pounds in his struggle to oppose violation of civil liberties this year. Now he's talking about this year. This is talking about 1 month. He has already spent 1 month. Now based on this statement, क्या हमारा इन्फरेंस होगा? क्या ये ट्रू है? क्या ये प्रोबेबल ट्रू है? इनसफिशिएंट डेटा है? प्रोबेबली फॉल्स है? फॉल्स है. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उसमें हम आंसर मार्क करते थे इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि पता नहीं, उसने हो सकता है किया भी हो या ना किया हो. लेकिन जैसे मैंने बोला, यहां पे आपके पास ये दो चॉइस भी हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ट्रू तो नहीं बोल सकते, डेफिनेटली ट्रू तो नहीं बोल सकते. लेकिन ये सोचो कि अगर वो 1 महीने में ही 180 पाउंड खर्च कर चुका है, तो क्या पूरे साल में उसने 200 पाउंड इन एक्टिविटी पे खर्च किए हो सकते हैं या नहीं? किए हो सकते हैं ना. चांसेस ज्यादा है सही होने के इस स्टेटमेंट के, गलत चांस है. चांसेस है, पॉसिबिलिटी है ना ज्यादा. तो अगर पॉसिबिलिटी है मोर देन 50%, तो आप ये वाला आंसर मार्क करोगे, ना कि इनसफिशिएंट डेटा. ये गलत हो जाएगा इस केस में. तो दो वी आर नॉट श्योर, राइट, बट चांसेस हैं सही होने के, 50% से ज्यादा चांस हैं, तो आप इस केस में ये वाला आंसर मार्क करोगे. अब आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबली ट्रू कब मार्क करना है, इनसफिशिएंट डेटा कब मार्क करना है. आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर इज प्रोबेबली ट्रू. You know that James had paid 180 pounds in past 1 month alone. You should know he is a human rights activist who is willing to spend money for his cause based on his action and testimony. As such, even though it is not explicitly mentioned in the text, it is safe to assume that sometime in the year James had spent at least 20 more pound on his activism
स्मोकिंग रिलेटेड और अदरवाइज। तो अगर उसने एक महीने में 180 पाउंड खर्च कर दिया तो चांसेस है कि उसने 20 पाउंड तो और कभी ना कभी खर्च करे ही होंगे। तो आप 100% श्योर नहीं हो, बट चांसेस ज्यादा है। तो आई एम श्योर नाउ बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल यू शुड बी एबल टू रेट इट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Virtual employees or employees who work from home via a computer are an increasing trend. In the UK, the number of virtual employees has increased by 39% in the last 2 years. तो लास्ट 2 ईयर में कितना बढ़े हैं? 39%. एंड बाय 74% इन द लास्ट 5 ईयर। टोटल अगर हम देखें 5 सालों में तो बढ़े हैं 74%। यानी कि पहले 3 साल में कितना बढ़े? 35। और अगले 2 में कितना बढ़ गए? 39। पहले 3 में बढ़े थे 35, अगले 2 में बढ़े 39। चलो, एम्प्लॉइंग वर्चुअल वर्कर्स reduces cost and makes it possible to use talented workers no matter where they located group। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी हमें शायद जरूरत ही ना पड़े। क्वेश्चन क्या दिया है? द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्चुअल एम्प्लॉइज वॉज ग्रेटर लास्ट ईयर देन इट वॉज 4 years ago। क्या हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर जो इंक्रीज हुआ हमारा, वो जब हमारा 4th ईयर में इंक्रीज हुआ होगा उससे ज्यादा है? यहां पे जो इंक्रीज हुआ क्या वो इससे ज्यादा है? क्या हम डेफिनेटली बोल सकते हैं? डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते, बट क्या हम बोल सकते हैं कि ये डेटा इनसफिशिएंट है या गलत है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? हो भी सकता है। गलत होने के चांसेस ज्यादा है या सही होने के चांसेस ज्यादा है? ट्रू तो नहीं है, डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है, डेफिनेटली तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम आंसर मार्क कर देते मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड या डेटा इनसफिशिएंट। बट क्या यहां पे हम डेटा इनसफिशिएंट मार्क करेंगे? नहीं करेंगे गाइस। खुद सोचो कि पहले 3 साल में टोटल मिला के 35% इंक्रीज हुआ है और अगले 2 साल में मिला के 39% हुआ है। तो 3 सालों में 35 और 2 सालों में 39%। तो चांसेस इस स्टेटमेंट के सही होने के ज्यादा हैं कि लास्ट ईयर ज्यादा एम्प्लॉई इंक्रीज हुए होंगे देन द 4th ईयर में जितने इंक्रीज हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप प्रोबेबल ट्रू मार्क करोगे, ना कि इनसफिशिएंट डेटा और प्रोबेबली फॉल्स या कुछ और। अरे समझ में आ रही है? तो वो यही बोल रहा है, करेक्ट आंसर इज अगेन प्रोबेबली ट्रू। देयर इज नो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट और रिफ्यूट दिस कंक्लूजन। In any other critical thinking test, the correct answer would therefore be insufficient data। किसी भी टेस्ट में हमारा आंसर ये होता है, लेकिन यहां पे आंसर ये नहीं है। On the inference section of the Watson-Glaser test, however, you can and you should use common sense। If more than half of the increase in the number of virtual employee of the last 5 years was made in the last 2 years, तो इससे 2 साल में ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना, टोटल का more than 50%। It can be safely assumed that the increase last year was greater than that of the 4 years ago। So this conclusion is not explicitly mentioned in the text, but it is more probable than not, and therefore it is probable true। तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं तो आप प्रोबेबल ट्रू मार्क करोगे, इनसफिशिएंट डेटा और प्रोबेबल फॉल्स नहीं मार्क करोगे। नाउ आफ्टर दीज टू एग्जांपल आई एम श्योर यू गेट एन आइडिया कि इसको कैसे टैकल करना है। अगर मैं ये नहीं बताता, अगर मैं एग्जांपल नहीं लेता, वहां पे जाके सोचना काफी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। लेकिन अब आई एम श्योर आपको आइडिया लग चुका है कि कैसे सोचना है इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में। अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन है रिकॉग्निशन ऑफ अजम्पशन। अजम्पशन को रिकॉग्निशन करना है कि अजम्पशन लिया गया है या अजम्पशन नहीं लिया गया है। द अजम्पशन सेक्शन विल प्रेजेंट यू विद ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय ए प्रपोज्ड अजम्पशन। Your task is to decide whether the person is making the given statement is making the proposed assumption or not। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको अजम्पशन लेके बनाया गया है या नहीं। जैसे कंप्लेंट्स वर रेज्ड अगेंस्ट द टाउन सोल फ्रेंच टीचर फॉर यूजिंग हर मोनोपोली टू चार्ज मोर देन हर लेट प्रेडेसेसर। तो अभी वो ज्यादा चार्ज कर रही है जितना वो पहले चार्ज करती थी, उससे ज्यादा चार्ज कर रही है। इन फैक्ट however she does not earn more money on each lesson than she would have before because she lives out of town and her fee reflects higher transportation costs than those of her predecessor who lived in town। तो जो पहला वाला प्रेडेसेसर था वो टाउन में रहता था, ये बंदी बाहर रहती है और इसी वजह से हो सकता है ये फीस ज्यादा चार्ज कर रही हो। तो क्या क्वेश्चन का आंसर करना है? सर्विस प्रोवाइडर्स
हु स्पेंड मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन आर मोर एक्सपेंसिव। क्या ये स्टेटमेंट जब बोला गया है तो कोई अजम्पशन लेके बनाया गया है या ऑलरेडी उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है इस डेटा से? क्या ये स्टेटमेंट कोई अजम्पशन लिया है उसने या ऑलरेडी सारा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्या लग रहा है आपको, अजम्पशन लिया है या अजम्पशन नहीं लिया है? आप खुद देखो ना, ये साफ साफ लिखा हुआ है, रीजन भी दिया हुआ है उसने कि बिकॉज she lives out of town and her fee reflects higher transportation cost than those of her predecessor who lived downtown। तो जब ये स्टेटमेंट बोला गया है तो क्या कोई अजम्पशन लिया गया है? नहीं लिया गया है कोई अजम्पशन। हमें तो ये दिख रहा है ना, डेटा साफ साफ दिया हुआ है, क्योंकि वो बाहर रहती है इस वजह से वो ज्यादा चार्ज कर रही है। तो सर्विस प्रोवाइडर्स हु स्पेंड मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन आर मोर एक्सपेंसिव। हम बोल सकते हैं कि जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्चा करेगा वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो अजम्पशंस आर नॉट मेड, data is already given in the question. Let's check. Yes, assumption is not made. There is a generalization of what happened in the town. This statement is a logical rule. It refers to all service providers in the world. The author might think this is true, but he does not have to assume it in order for the passage to make sense. तो उसको assume करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नोन है, लॉजिकल रूल है कि जो बाहर रहेगा वो ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज करेगा। जब वो स्टेटमेंट बोल रहा है तो देयर इज नो नीड टू टेक एनी अजम्पशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट विल इंक्रीज इट्स बिजनेस परफॉर्मेंस। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये हमारा स्टेटमेंट है। इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द इंपैक्ट ऑफ डिपार्टमेंट साइज ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। तो क्या डिपार्टमेंट साइज से बिजनेस परफॉर्मेंस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आई डू नॉट थिंक सो। आई डू नॉट थिंक सो। क्या डिपार्टमेंट साइज से बिजनेस परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी? ये तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। तो जब ये स्टेटमेंट बनाया गया है तो अजम्पशन लेके बनाया गया है, अज्यूम कर लिया गया है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट विल इंक्रीज इट्स बिजनेस परफॉर्मेंस। क्या प्रिडिक्ट करा जा सकता है इंपैक्ट? नहीं करा जा सकता। तो यहां पे जो स्टेटमेंट बोला गया है वो अजम्पशन लेके बोला गया है। To see why the assumption is made, let's use the negative test algorithm. Negate the assumption. ये जो assumption है इसको negate कर दो। It is impossible to predict the impact of department size on business performance. क्या ये negate करके सही बन रहा है सेंस? It is impossible to predict the impact of department size on business performance. बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना कि impossible है predict करना impact of department size on business performance। तो अगेन negate करके सेंस बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला गया है इसका कोई सेंस नहीं है। ये हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं। यानी कि जब ये स्टेटमेंट बोला गया था तो अजम्पशन लेके बोला गया था। तो आप नेगेटिव करके देखा करो उसको। चेक इफ द वैलिडिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट चेंजेस। इन आवर केस इट डज, since if there is no way to measure the effect of department size on the business performance, then any statement trying to predict such effect is meaningless. So if the statement is not valid anymore, then the assumption was made. तो अब ये स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि नेगेटिव करने पर ज्यादा सेंस बन रहा है। तो अगर नेगेटिव करने पर ज्यादा सेंस बन रहा है मतलब ये बोलते समय उसने अजम्पशन लिया होगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन अजम्पशन बेस्ड। ये आपका सेकंड सेक्शन। कम टू थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन आएगा डिड्यूस। इन द डिडक्शन सेक्शन you will be presented with a premise followed by a suggested conclusion. Your task is to determine whether the conclusion is absolutely and necessarily follows the premise. तो क्या conclusion follow कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, ये डिडक्शन सेक्शन है थर्ड वाला। डेफिनेटली होना चाहिए, एब्सोल्युटली एंड नेसेसरली फॉलो। इसमें आप चांस नहीं ले सकते, या दो ही आंसर है, या तो करेगा या नहीं करेगा। तो जब आप 100% श्योर होगे तो फॉलो करेगा, अगर आप 100% श्योर नहीं होगे तो फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मूर्ति ओन अ सक्सेसफुल टेक कंपनी आफ्टर अनाउंसिंग द प्लान to return to their office full time. 70% of his employees have requested to continue working remotely at least a few days a week, while a small percentage of them decide to leave the company. तो जब बोला गया कि वापस तुम्हें अपनी जॉब पे आना पड़ेगा, 70% ऑफ एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट किया कि हमें कम से कम 1-2 दिन घर पे ही काम करने दो, फ्यू डेज। एंड स्मॉल लोगों ने बोला, स्मॉल पार्ट ऐसा था, 30% बोल सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि हम तो जॉब छोड़ देंगे, अगर हमें वापस बुलाया तो हम जॉब छोड़ देंगे। तो क्या
ये स्टेटमेंट या कंक्लूजन हम बोल सकते हैं एम्प्लॉइज एट ऑल टेक कंपनीज लाइक वर्किंग रिमोटली? क्या हम ये जनरलाइज कर सकते हैं ऑल टेक कंपनी के लिए? आई डू नॉट थिंक सो. तो हैविंग पैराग्राफ इन द माइंड, दिस स्टेटमेंट इज अ कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा. ऑब्वियसली नहीं कर रहा. पता चल रहा है कि भैया ऑल टेक कंपनी को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? एक कंपनी के बेसिस पे कैन वी जनरलाइज इट ऑल टेक कंपनी? नो, वी कैन नॉट. तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द आंसर इज कंक्लूजन दैट डज नॉट फॉलो. अरे ये गायब भी हो गया. Solution: information about employees at a specific company does not allow us to draw conclusion for employee at all tech company. So the answer is conclusion will not follow as we cannot draw conclusion for all tech company. तो डेफिनेट था ये, तो देख के आसान क्वेश्चन था. तो टेक कंपनी हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा. तो ये था हमारा थर्ड पार्ट. दैट इज फोर्थ पार्ट, इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में भी आपको कंक्लूजन ही निकालना है. In the interpretation section, you will be presented with a premise followed by a suggested conclusion. Your task is to determine whether the conclusion follows the premise beyond a reasonable doubt. मतलब same. Beyond a reasonable doubt मतलब 100% sure है तो follow करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा. Example is, I have 9-month-old baby at home and she usually agrees to be put to bed where she falls asleep promptly. तो जैसे ही हम उसको बेड पे ले जाते हैं वो सो जाती है. 9 months की बेबी. But every time her grandparents visit in the evening, she cries when I put her to bed, and she continues to cry for an hour. तो अगर grandparent आते हैं तो वो नहीं सोती है. क्या भैया रीजन है? My baby's difficulty is mostly psychological. Her grandparents give her chocolates to eat, and sugar makes her hyperactive. क्या ये कोई डेफिनेट कंक्लूजन है? क्या हम बोल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ऐसा हुआ होगा कि ग्रैंड पेरेंट ने चॉकलेट दिया होगा, इस वजह से उसका शुगर लेवल बढ़ गया होगा और हाइपर एक्टिव हो गई होगी वो? इज इट द डेफिनेट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ? द आंसर इज नो. कंक्लूजन दैट डज नॉट फॉलो. Conclusion that does not follow, and the reason is the conclusion proposes a reason that is neither given explicitly in the text nor it is probable beyond a reasonable doubt. मतलब कुछ नहीं पता, अलग सा ही कुछ स्टेटमेंट है, तो हम इसके बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं बोल सकते. इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन दैट स्टेम्स फ्रॉम आवर ओन पर्सनल परसेप्शन. तो ये तो हमने एक नया रीजन निकाल दिया. जब तक हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है हम ये कंक्लूजन नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली फॉलो कर रहा है. राइट? तो ये भी इजी क्वेश्चन था. आई थिंक पता चल रहा है कि स्टेटमेंट अलग से ही कुछ दिया हुआ है. एंड लास्ट है इवेल्युएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वीक आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. In the argument section, you will be presented with a yes or no question followed by an argument. Your task is to determine whether the argument is strong or weak and in answering the question. तो या तो strong होगा या weak होगा. Yes no से शुरू होगा question. Question is, should parent put their children in preparation courses for gifted test in order for them to reach their full potential? तो क्या उनको टेस्ट देने चाहिए, प्रिपरेशन कोर्सेज में डालना चाहिए फॉर गिफ्टेड टेस्ट? पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड शुड डू व्हाटएवर दे कैन हेल्प देम सक्सीड इन लाइफ. क्या उनको टेस्ट में डालने से क्या हम ये श्योर हो जाएंगे कि वो फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे? पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर एंड शुड डू व्हाटएवर दे कैन टू हेल्प देम सक्सीड इन लाइफ. इज इट अ वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट? क्या लग रहा है? देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब तक उसके बारे में आपके पास 100% श्योरिटी ना हो कि पुट देयर चिल्ड्रन इन द प्रिपरेशन कोर्स फॉर गिफ्टेड टेस्ट इन ऑर्डर फॉर देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, तो फुल पोटेंशियल पे तब पहुंचेंगे ना. अब तो इनको टेस्ट में डाल रहे हो, प्रिपरेशन कोर्स में डाल रहे हो टेस्ट के लिए. टेस्ट से क्या वो फुल पोटेंशियल पे पहुंचेंगे? क्या ये 100% गारंटी है? देखते हैं. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज वीक आर्ग्यूमेंट. तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि टेस्ट में डालने से क्या उनका फुल पोटेंशियल आ जाएगा. रीजन गिवन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन द इवेल्युएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट सेक्शन इज लेटिंग योर ओन पर्सनल व्यूज एंड ओपिनियन अफेक्ट योर जजमेंट. तो हमें लग रहा है ऐसा देखने में कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, बट इट इज नॉट. जब तक आपके पास ऐसा कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं मानोगे. दिस इज जस्ट ऑन आर own perception, our
ओन परसेप्शन, जो हमारे साथ हुआ है उस पर बेस्ड हमें लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि बच्चे के लिए क्या ठीक है, नॉट नेसेसरली ट्रू ऑलवेज, इट कैन बी बट नॉट डेफिनेट ट्रू। तो ये थे गाइज आपके 5 सेक्शन, मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया है। अब आई डू नॉट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शुड ए कंपनी ग्रांट इट्स एम्प्लॉइज सम फ्री टाइम टू स्पेंड इन एनी मैनर दे चूज? एनी मैनर दे चूज, ये तो काफी लाइट हो गया। सम फ्री टाइम टू स्पेंड इन एनी मैनर दे चूज, नो, employees are likely to use the free time to clean their homes, run household tasks, and meet their friends, and thus bring no benefit to the company whatsoever। मुझे तो बिल्कुल स्ट्रांग लग रहा है कि कंपनी को ऐसे तो ग्रांट नहीं करना चाहिए फ्री टाइम इन एनी मैनर दे चूज, अदरवाइज एम्प्लॉई विल टेक इट लाइटली and they will use the free time to other activity which may not benefit the company। So I think the answer is strong। Let's check what is the answer, and I'm sure you also feel कि strong argument है एम्प्लॉय को नहीं करना चाहिए ऐसा। What is the answer? Answer is strong, correct? And what is the reason? The argument is both relevant to the topic and important. It is important as it refers to the benefit the company might or might not get from the policy, right? So as it addresses the issue itself, the free time given to employee and its consequences। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम उसका फ्री टाइम उनको यूज करने के लिए दे देंगे तो वो अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर केओस हो जाएगा। अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, विल नॉट बी ए सिस्टम। तो कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, टोटली एग्री। तो नाउ आई एम श्योर ये एग्जाम्पल के साथ और क्लियरिटी आ गई होगी। तो if you have not subscribed the channel guys, you can do that because more videos are going to appear in near future। And if you have not liked it the video yet, do that now, and you can forward this video as well। And in the comment section you can let me know if you want any specific video from my side, जो आपको चाहिए, आपको लगता है कि हमें इसका कोई अच्छा solution चाहिए या इस पे वीडियो बनाओ, kindly write down in the comment section as well। Okay, thank you।